जय गुरुदेव. Okay. So I hope we have been doing our observations since yesterday. जो कल हमने डिसाइड किया था ना, क्रेविंग्स एंड एवर्शंस को ऑब्जर्व करना साइलेंट रह के, एंड ऑल्सो द प्रैक्टिस ऑफ बिकमिंग साइलेंट फॉर 2 to 3 minutes a few times a day. जैसे कि यू आर डूइंग अ वर्क, 2-3 घंटे आपने काम किया, 2-3 मिनट साइलेंट हो जाओ और ऑब्जर्व करो व्हाट्स हैपनिंग. So today Gurudev has elaborated further 4 types of observations Lord Buddha recommends: Kayanupashyana, Vedanupashyana, Chittanupashyana, and Dhammanupashyana. So observing the body, what is happening in the body, observing the sensations, then observing the mind, thoughts, feelings, and then observing your nature. Dhammanupashyana यानी कि धर्म. We spoke a lot about dharma when we were listening to the Ashtavakra Gita 2 weeks ago, the Hindi version. तो एक तो वो ऑब्जर्वेशन हम अभी भी जारी रखते हैं, क्रेविंग्स एंड एवर्शंस, एंड बीच बीच में मौन हो जाना, जस्ट विड्रॉइंग. मौन हो जाना मीन्स इट इज नॉट जस्ट अबाउट कीपिंग क्वाइट, इट इज विड्रॉइंग योर सेंसेस इनसाइड, विड्रॉइंग द माइंड इनसाइड. मन बार बार बाहर जा रहा है ना, उसको अंदर ले आना. डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम द वर्ल्ड. So today, let us give one more addition to that. Sensations को observe करना. Now this is very interesting. I mean, ये जो एक on the basis of what Gautam Buddha said, Gurudev simplified it even further. Gurudev has made it a very practical, simple to apply technique. There is an event. That event is triggering some emotion. Now, हम इवेंट एंड इमोशन ये दो को ही देखते रहते कि ये घटना की वजह से मुझे दुख हुआ है, या ये घटना की वजह से मुझे गुस्सा आया है. But every emotion has a corresponding sensation in the body. जब भी हम एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम्स बार बार करते हैं तो उससे क्या होता है, ये ट्रेनिंग हमको मिलती है. माइंड गेट्स ट्रेन्ड टू लुक एट एन इमोशन एज अ सेंसेशन एंड नॉट एज एन इमोशन और नॉट एज एन इवेंट. When you look at an emotion as a sensation in the body, it is easier to observe sensations than to observe an emotion. Because the emotion is overpowering you. It's difficult to observe the emotion when you are in the power of that emotion. गुस्सा आ गया है, अभी उसको ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल है ना. जैसे गुरुदेव ने बोला ना, आर यू हियर, आर यू अवेयर दैट यू आर हियर, आर यू अवेयर दैट यू आर सेइंग यस, आर यू अवेयर दैट यू आर सिटिंग. Sometimes you feel the anger, but you are not aware that you are experiencing anger this moment. इसलिए गुरुदेव ये पूछे, आर यू हियर, आर यू अवेयर दैट यू आर हियर. दो अलग क्वेश्चन है, आर यू हियर एंड आर यू अवेयर दैट यू आर हियर. So people said, okay, yes. He said, are you aware that you are saying yes? तो ये अवेयरनेस का प्रैक्टिस, आई एम एंग्री, बट एम आई अवेयर दैट आई एम एंग्री? आई एम सैड, am I aware that I am sad? क्या
ओके, मैं दुखी हूं ये एक बात है, लेकिन क्या मुझे इस बात की सजगता है कि मैं दुखी हूं? इरिटेशन हो रहा है, क्या मुझे इस बात की सजगता है कि मुझे इरिटेशन हो रहा है? ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अच्छा, फिर हम क्या बोलते हैं, नहीं नहीं वो देखो, वो इतना ट्रैफिक जैम हुआ है इसीलिए मुझे इरिटेशन हो रहा है, लोगों ने गलत तरीके से अपनी गाड़ी को वहां पे डाल के रखा है, इसके लिए मुझे इरिटेशन हो रहा है। इवेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल, we are not aware that we are experiencing that emotion. Secondly, we are connecting it to an event. So what is the technique? Delinking the emotion from the event and asking yourself or becoming aware, where is the sensation? इस इवेंट का सेंसेशन कहां? The moment you start observing the sensation, the emotion starts dropping. तो ये प्रैक्टिस जब होने लगती है, फिर जब ही वो इमोशन आता है उस क्षण हम अवेयर हो सकते हैं, ओ what emotion am I experiencing and what sensation is it leading to? Where is the sensation? Is it in the heart? Is it in the throat? Is it in the head? Where is the sensation? ये जब भी क्वेश्चन पूछेंगे, ओके, हाउ इंटेंस इज द सेंसेशन? What is the sensation doing? Is it a vibration? What is it? Observing that sensation. The emotion starts dropping down. जितना हम इवेंट पे फोकस करते रहेंगे, जितना हम किसी परिस्थिति या किसी व्यक्ति को ब्लेम करेंगे हमारे इमोशन के लिए, उतना इमोशन हम पर हावी होता रहेगा। और जैसे ही हम सेंसेशन ऑब्जर्व करेंगे, इमोशन ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए बीइंग साइलेंट एट दैट टाइम इज इंपॉर्टेंट। साइलेंस ब्रेक्स द पैटर्न्स। अभी ये पैटर्न बन चुका है, कोई इमोशन आया तो इमोशन को जस्टिफाई करना, नहीं नहीं वैसे तो मैं ठीक ही था, उसने ऐसा बोला इसके लिए मुझे ऐसे लगा। ये पैटर्न बन चुका है। यहां पर देखो, हम साधना करते हैं और ज्ञान सुनते हैं, गुरुदेव को सुनते हैं, तभी हम ये सब अच्छे अच्छे आंसर्स लिखते हैं चैट में, राइट? बट एक्चुअली जब वो सिचुएशन आती है, when that irritating person is now again irritating you, at that time what is happening? So you have written, silence is wisdom, awareness is pragya, डीलिंग द इमोशन, बट आर वी डूइंग इट? अभी वो पैटर्न बन चुका है, और वो लाइफ टाइम्स का पैटर्न बन चुका है, सिर्फ इस जन्म का नहीं, लाइफ टाइम्स का पैटर्न। तो इसके लिए उसको ब्रेक करने के लिए कुछ तो एफर्ट लगेगा, एंड द सिंपल एफर्ट इज जस्ट टू बी साइलेंट एंड ऑब्जर्व व्हाट इज हैपनिंग इन द बॉडी, व्हाट सेंसेशंस आर being triggered. Just a observation. फिर वो really it will all start making sense that silence is the source. जैसे now Gurudev really spoke about the flaws that the modern psychologists or psychiatrists in their methods. So when somebody makes a statement, deep inside you there is sorrow, deep inside there is only bliss, there is no sorrow. ये सब सेंसेशंस, नेगेटिव सेंसेशन, जो भी सेंसेशंस हैं बिकॉज विच आर मेकिंग अस फील नेगेटिव एटसेट्रा, देयर ऑल ऑन द पेरिफेरी। ये ऑब्जर्वेशन करते 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 क्या होगा,
थोड़ा और गहराई में जाएंगे, फिर और ऑब्जर्वेशन करेंगे, और गहराई में जाएंगे, और ऑब्जर्वेशन करेंगे, और गहराई में जाएंगे। वो गहराई में जाते जाते फिर पता चलता है कि इट इज ओनली ब्लिस। सो दिस इज व्हाट वी डू टुडे, ऑब्जर्व द सेंसेशंस। एनी इमोशन कम्स अप, तो ये अभी देखो, पहले वो इमोशन जब आता है तो हमको पहले याद आना चाहिए कि अरे अभी सेंसेशन को ऑब्जर्व करना है। वो याद तब आएगा जब वो पैटर्न टूटने लगेगा, क्योंकि वो याद नहीं आएगा ना, बिकॉज द इमोशन इज सो पावरफुल। अगर वो याद आ गया तो just take it as a good news. There is some progress already. You are lucky. Maybe because of the sadhana that you are doing, maybe some observation you have been doing. उसके वजह से वो याद तो आएगा एटलीस्ट, ओके लेट मी ऑब्जर्व व्हाट इज दिस इमोशन डूइंग, सेंसेशन कहाँ हो रहा है। याद ही नहीं आया तो कुछ नहीं कर सकते, करते जाओ। नेक्स्ट टाइम के लिए वेट करो, नेक्स्ट टाइम कोई इमोशन आता है तब देखो याद आता है कि नहीं। ऐसे करते करते वो पैटर्न टूटने लगेगा, and then you experience so much freedom when the pattern breaks, because now the emotion is not overpowering you. Now you are more powerful than the emotion, so you will experience the emotion, and yet you are not overtaken by the emotion. That is freedom. Okay, 2 or 3 questions we can take if anybody has any. You can unmute and ask, or you can type in the chat. Okay, no questions. अच्छा, one more thing. जैसे गुरुदेव बताते ना, बुद्धा would keep silent to so many questions that were asked to him. He wouldn't say anything. और आप गुरुदेव की भी देखोगे आंसर्स कितने शॉर्ट होते हैं। क्वेश्चन कभी कभी बहुत लंबा होता है, लेकिन गुरुदेव का आंसर एक लाइन का होता है, मिनिमम वर्ड्स। जैसे आई रिमेम्बर व्हाट अ क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन, मतलब गुरुदेव व्हाट इज माय ट्रू नेचर, हु एम आई, यू नो। तो गुरुदेव ने कहा था, दोज हु नो विल नॉट टेल यू, एंड दोज हु आर टेलिंग यू नो दैट दे डू नॉट नो। So let us observe in our conversations, in our communication, can we do that? बहुत बार हम ऐसी जगह पे बोलते रहते हैं जहां बोलने की कोई आवश्यकता नहीं होती, और वो बोलने की वजह से और बिगड़ जाता है मामला। So there is a proverb in English, ना, silence is golden. तो can we just remain silent? How many, देखो, how many questions we will be able to just bypass by just being silent? क्योंकि व्यक्ति को भी आंसर चाहिए नहीं होता है। वो उस जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है, वहां क्वेश्चन होता ही नहीं है, वो सिर्फ कुछ बता रहा होता है। An argument happens and somebody says, तो तुमको क्या जरूरत थी ऐसा करने की? When somebody is asking like that, they're not asking you anything. They are just expressing their frustration. They are expressing their denial of your action. कि why your action is wrong. तो उसमें आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है, वो वैसे भी नहीं सुन रहे हैं आपको।
है ना? Intense emotion. Should you put a full stop to the action or go with the flow? Now see, this is very tricky. When you're experiencing an intense emotion, should you put a full stop to the action or should you go with the flow? Now, going with the flow typically means what? भी आपको गुस्सा आ रहा है, गोइंग विद द फ्लो मीन्स व्हाट? गालियां फ्लो हो रही है आपके मुंह से, ये गोइंग विद द फ्लो है क्या? व्हाट इज गोइंग विद द फ्लो? है ना? तो जब भी आप साइलेंट हो जाओगे, यू विल कंप्लीटली विड्रॉ ऑल योर सेंसेस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. जय गुरुदेव भैया. वो फ्लो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है. तभी आपको अपने आप पता चलता है कि क्या बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, किसको बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए. When you go silent inside, when the pattern breaks, इवेंट से जब भी आप डिस्कनेक्ट हो गए ना, तभी आप इंडिपेंडेंट हो. नहीं तो फिर वो इवेंट और इमोशन ओवर पावर कर रहा है आपको. जब आप डिस्कनेक्ट हो गए, असंगो हम, पुनः पुनः. हर एडवांस कोर्स मेडिटेशन के बाद गुरुदेव ये बोलते हैं, असंगो हम, पुनः पुनः. तो जब भी वो इवेंट से डिस्कनेक्ट हो जाओगे आप, तभी तो फिर आप सेंटर्ड हो, आप इंडिपेंडेंट हो. नाउ यू कैन डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू. है ना? तो फ्लो में होना मतलब प्रेजेंट मोमेंट में होना नहीं है. यू आर गेटिंग कैरिड अवे. नो नीड टू बी इन द फ्लो. So again, it is not about suppressing the emotion. It is not about expressing the emotion. It is about being with the emotion. And being with the emotion means observing the sensation. Very important notice. It is not suppressing the emotion. It is not expressing the emotion. It is something between suppressing and expressing. Being with the emotion. गुरुदेव क्या बोलते हैं? Be with the emotion 100%. Being with the emotion 100% means observing the sensation. Because only if you be with the emotion, you will be able to make any observation. Sometimes we are not able to sit for health sadhana properly because of physical body pains. Yeah. That is why the asanas are important. Na? शरीर ठीक रहे इसके लिए आसन करना जरूरी है. शरीर ठीक रहेगा तो फिर आप 20 मिनट स्टिल बैठ सकते हो विदाउट एनी मूवमेंट. है ना? भैया जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. भगवत गीता में तो ऐसा बोला है कि पहले क्वेश्चन आता है फिर साइलेंस मेडिटेशन होता है. क्वेश्चन पहले आता है ना, तो बोलना जरूरी है, फिर पूछना है क्वेश्चन, तभी तो साइलेंस हो सकते हैं. नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी बोला है कि बोलना जरूरी है. क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन को भी, क्वेश्चन के रूट को ऑब्जर्व करो. क्वेश्चन पूछने के पहले भी हमने ऑब्जर्व करना चाहिए, क्वेश्चन पूछने लायक है क्या, ये क्वेश्चन कहां से आ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ के क्या होगा. ऑब्जर्वेशन वो इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे क्वेश्चंस तो हमारे ऐसे ही ड्रॉप हो जाएंगे. है ना? अभी आपने ये जो क्वेश्चन पूछा, अभी आपने इस क्वेश्चन को अगर क्वेश्चन पूछा होता कि ये क्वेश्चन पूछना जरूरी है क्या, तो ये क्वेश्चन ही ड्रॉप हो गया होता था. जस्ट ऑब्जर्विंग. बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स तो हमको पता होते हैं, तो पूछने की भी आवश्यकता नहीं होती है. देखो क्वेश्चंस कैसे, दो क्वेश्चंस से ग्रंथ निकले. जो क्वेश्चंस श्री राम ने महर्षि वशिष्ठ को पूछे, जो क्वेश्चंस अर्जुन ने कृष्ण को पूछे, जो क्वेश्चंस राजा जनक ने महर्षि अष्टावक्र को पूछे, ये क्वेश्चंस पूछने लायक हैं.
हमारे क्वेश्चंस आप देखोगे एकदम बहुत ऊपर ऊपर के स्तर के होते हैं, जो पूछने की जरूरत ही नहीं होती, जिसको आंसर करने की भी जरूरत नहीं होती। ओके, जय गुरुदेव, लेट्स कंटिन्यू आवर ऑब्जर्वेशन। टुमारो जय विल बी द फिनिशिंग पार्ट ऑफ द टॉक। जय गुरुदेव भाई।